Okay, so now we are going for application of scalar triple product. So the first application of vector triple product is, it is volume of parallelepiped. This is volume of parallelepiped. What is volume of parallelepiped? Box of ABC. Box of ABC is volume of parallelepiped, where vector ABC are three adjacent sides of the parallelepiped. Parallelepiped क्या होता है? Parallelogram का 3D you can call it. Like square का 3D जो होगा वो होगा क्यूब, रेक्टेंगल का 3D is basically cuboid, और पैरेललोग्राम का 3D is basically parallelepiped. तो दैट पैरेललोपिपेड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज बॉक्स ऑफ ABC. एंड नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 box of ABC. Volume of tetrahedron is 1/6 box of ABC. So these are two major application of the box product. It is also called scalar triple product as well as the box product. Now, for example, पहले तो ये tetrahedron क्या होता है? Tetrahedron is basically something like this. These are the three sides, or this is the face. So one face, two face, three face and four face. This is your triangle, this is your triangle, this is your triangle and this is your triangle. 1 2 3. तो four triangles मिला करके we get a tetrahedron. और इसी को parallelepiped बनाना हो तो इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे इन दोनों से, इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे इन दोनों पॉइंट से, और इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे इन दोनों वर्टेक्स से. तो वी गेट अ बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड पैरेललोपिपेड. सो व्हाट आई कैन से कि एक पैरेललोपिपेड में देयर आर हाउ मेनी टेट्राहेड्रन्स? देयर आर 6 टेट्राहेड्रन. इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा. खैर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो नाउ द एग्जांपल इज vertices of a parallelepiped are given by 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2 1 minus 1 1. ये 4 वर्टेक्स आपको गिवन है. Using the 4 vertex, you can easily draw the parallelepiped. You can easily make the parallelepiped. तो ये जो parallelepiped है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. फाइंड वॉल्यूम ऑफ द parallelepiped. ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैंने बोला था कि वेक्टर्स पॉइंट्स आर एक्चुअली ऑफ नॉट इंपॉर्टेंट, ऑफ नो इम्पोर्टेंस. पॉइंट्स का एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. वेक्टर के चैप्टर में वेक्टर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. सो व्हाट आई सेड, इफ यू हैव 1 पॉइंट you cannot draw a vector. If you have 2 points, you can join them to form 1 vector. If you have 3 points, you can join them to find how many vectors? It looks like 3 if you don't remember that, but actually I said there will be 2 independent vectors. And for that what I said कि अगर n vectors होंगे, n point होंगे तो n minus 1 vector बनेगा. n minus 1 vector बनाने के लिए the basic idea is कि take any one point fix और वहां से बाकी सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो. So this is what I'm going to do here. Let's say this is A, this is B, this is C and this is D. So I'm going to draw 3 vectors, that is AB vector, AC vector and AD vector. If you want, you can draw AB, BC, CD also, no issues at all. But this is best idea to avoid any confusion and any miscalculation. So AB vector की बात करेंगे तो B minus A आएगा and B minus A will be 1, 1 minus 4. AC vector की बात करेंगे तो C minus A आएगा -1, -1 and -1. और AD vector की बात करेंगे तो that will be D minus A and that is 0, -3 and -2.
Now we have the three vectors, और इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा that will be actually volume of the parallelepiped, because all we need is three adjacent vertices, sides actually. So the volume will be box of ABC, और box ABC कैसे कैलकुलेट करते थे? सिंपल डिटर्मिनेंट से. तो डिटर्मिनेंट विल बी 1 1 -4 -1 -1 -1 एंड 0 -3 -2. इसका मॉड होगा अगर ये निगेटिव आएगा तो. नाउ टेक अ पॉज एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू. आई एम गोइंग टू डू दिस. तो 1 into 2 - 3 -1 into 2 -4 into 3. That comes out to be -1 -2 minus, that is -15. So actually the volume will be 15 cubic unit cube actually. Unit cube. That is the volume. So that is a major application of box product. Apart from this, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की बात करते हैं तो सीधा इसका 1/6 आ जाएगा. दैट इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस. देन सेकेंड एप्लीकेशन, दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन, आई विल से एप्लीकेशन नंबर 1. एंड एप्लीकेशन नंबर 2 इज, ये बताओ अगर बॉक्स वैल्यू 0 हो जाए, इफ बॉक्स इज इक्वल टू 0 इट मीन्स वॉल्यूम इज 0. अब 3 वेक्टर्स हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो पैरेललोपिपेड बनेगा, उसका वॉल्यूम 0 कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड कम्स आउट टू बी 0? हाउ इज इट पॉसिबल दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इक्वल टू 0? दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेक्टर्स A, B, C are coplanar. When the vector A, B, C are coplanar. तो that is the second application. जब भी हमें vectors को coplanar करना है तो what we do? We put that we show that their box is equal to 0. अगर बॉक्स 0 होगा तो वॉल्यूम 0 होगा. वॉल्यूम 0 होगा जब सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे. So let's take another example. Let's say 1 2 3 2 3 -1 0 1 2. ये 3 पॉइंट्स है. ये तीनों पॉइंट का कोप्लानर होने का क्या कंडीशन है? आर कोप्लानर और नॉट? दैट इज द क्वेश्चन. What can you say about the coplanarity of these 3 points? सो जनरल जो बेसिक एक आइडिया होता है, जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपका काम करता है वो ये कि इसका डेल्टा 0 कर देते, इसका बॉक्स 0 कर देते. बट नो, ये जो बॉक्स 0 करना है ये वेक्टर का करना है और ये तो पॉइंट है. तो अगर पॉइंट है तो पॉइंट का बॉक्स 0 करने से कोप्लानैरिटी नहीं आएगी. सो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट वेक्टर. और जब वेक्टर बनाएंगे तो 2 ही वेक्टर आएंगे, तो तीसरा वेक्टर कहां गया? सो नाउ टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट कि हाउ डू वी चेक कि ये कोप्लानर है या नहीं है. आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर. आई होप कि आपने सोच लिया होगा. एंड द आंसर इज कि 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लानर. 3 पॉइंट्स तो हमेशा कोप्लानर ही होने वाले हैं. कोई भी 3 पॉइंट ले लो, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ प्लेन. You cannot draw 3 points in the space which are non-coplanar. So as I said, the answer is yes, because any 3 points are always coplanar. तो फिर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब हुआ, लेट मी टेल यू अनदर क्वेश्चन, कि 1 2 3 2 3 -1 0 1 2 and 1 2 lambda are coplanar, then find lambda. Then find lambda. Lambda आपको फाइंड करना है इफ these 4 points are coplanar.
अब मैंने पॉइंट्स क्यों लिया, सीधा वेक्टर क्यों नहीं लिया? आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू द आइडिया कि पॉइंट्स आर एक्चुअली ऑफ नो यूज, यू हैव टू मेक इट व्हाट, वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या बनाए, लेट्स से इसको फिक्स कर दिया तो एक वेक्टर होगा 2 - 1, 3 - 2 and -4. Second vector will be AC, C minus A, that is -1, -1, -1. And third will be D minus A, that is 0, 0 and lambda -3. It has to be equal to 0 for the coplanarity. तो वापस से हमें 3 वेक्टर्स मिल गए और 3 वेक्टर्स है तो कोप्लानरिटी चेक कर लेते। अब इसका वैल्यू निकालना है तो आई एम गोइंग टू यूज द थर्ड रो to 0 into something -0 into something plus lambda -3 into -1 minus -1, that is 0. What is this? What we get here is that this is 0 equal to 0. This is 0 equal to 0. It means लैम्डा का क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा ही गायब हो गया, देयर इज नो लैम्डा, हाउ डू वी फाइंड द लैम्डा वैल्यू? सो एक्चुअली 0 equal to 0 is identity, so I can say कि lambda can take any value. For any value of lambda, these 4 points are going to be coplanar. मतलब वो जो थर्ड वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, वो इसी प्लेन में लाई करता है जो कि ये फर्स्ट 3 पॉइंट से बनेगा. सो दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिस एप्लीकेशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. एक तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन एंड पैरेललोपिपेड और दूसरा कंडीशन फॉर कोप्लानैरिटी. कोप्लानर होंगे अगर उनका डेल्टा का वैल्यू 0 होगा. सो दैट इज द आइडिया. अगर 3 वेक्टर्स दिया है तो सीधा सीधा यूज कर सकते हो और 3 पॉइंट दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. हाँ, 4 पॉइंट गिवन है, देन यू हैव टू चेक. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. कोई 1 पॉइंट होगा तो उसका कोलिनियरिटी चेक करोगे? नहीं, 1 पॉइंट से लाइन बनता ही नहीं. अगर 2 पॉइंट्स हैं तो डू वी चेक कि 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट? नो वी डोंट, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. जब 2 से ज्यादा थर्ड आता है तो हमें चेक करना पड़ता है. वैसे ही कोप्लानैरिटी में 3 पॉइंट्स तो हमेशा कोप्लानर होंगे. जब 4th पॉइंट आएगा तो हमें चेक करना होगा कि whether they are coplanar or not. So that was your application of box function. Now we are going to solve some questions and then we will proceed from there. Okay, so we have these 3 more questions. First question की बात करते हैं. You have to find A dot B plus C cross A plus B plus C. So this is what I will say कि this is A, B plus C and A plus B plus C का बॉक्स है. ये जरा ध्यान से देख लो, समझ लो. A dot B cross C is basically box A, B, C. So this is box A, B and C. Now what? Now I am going to do some transformations that is connected with the determinant जो हमेशा से करते आए. So if I add R1 plus R2, it looks like C1 plus C2, but this basically constitute the whole R1, this is whole R2 and this is whole R2. Whatever you say, you can call C1 plus C2 also, but not a good idea. So R1 plus R2 करेंगे तो I will get A plus B plus C, then B plus C, then A plus B plus C. What do you see? I see that first and third rows are identical. Or if 2 rows are identical, then value comes out to be equal to 0. Value comes out to be equal to 0. Second question की बात करते हैं. Here what we are going to do is R1 plus R2 plus R3. If I do R1 plus R2 plus R3, तीनों को ऐड करेंगे तो I'll get 0. Then this will be B minus C, C minus A. और किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो कि सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है. नेक्स्ट की बात करते हैं. दिस इज व्हाट A plus B plus C,
सी माइनस बी एंड ए का बॉक्स, ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस बी और ए का बॉक्स. नाउ व्हाट, लेट्स से कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी में से ये ए सबट्रैक्ट किया, दैट इज R1 माइनस R2. R1 माइनस R2 विल गिव मी ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस बी. R1 माइनस R2 किया तो सिर्फ बी प्लस सी बचेगा एंड दैट इज योर ए. अच्छा, इक्वल टू 0 नहीं है. Now what? Now I am going for C1 plus C2. C1 plus C2 करेंगे, R1 plus R2 actually. I can also starting में I could have done R1 plus R2 plus R3. But छोटे छोटे steps करते हैं. Add करोगे तो I'll get 2C, C minus B and A. Pause the video. Try to do it on your own. Determinant आपको आता है बहुत अच्छे से. Simple सा chapter है determinant. You can manage. अब मैंने 2 कॉमन लिया तो C माइनस बी एंड ए. नाउ R2 माइनस R1 करते हैं. R2 माइनस R1 करेंगे तो माइनस आएगा. ये माइनस कॉमन लिया तो मिला C B A. नाउ दिस इज बी ए है, ए बी सी नहीं है, तो जब इसको ए बी सी लिखेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा, वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा. डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, बट लेट्स डू इट अनदर वे. इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, इंटरचेंज करेंगे तो ये ए और सी हो जाएगा, तो एक बार माइनस आएगा. What do we get is equal to 2 times box ABC. इसका वैल्यू 2 times box ABC आया. So all these things are exactly like determinant. Determinant में हम यही सारा काम करते हैं and we find the value. तो जैसे कि कुछ रिजल्ट्स हमने याद किए थे, एक था A plus B, B plus C, C plus A and the value was 2 times A plus B plus C. ऐसे ही एक और है A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A. This result also you have to remember and that is box ABC का स्क्वायर. बट ये रिजल्ट हमने पता चलेगा आफ्टर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. बॉक्स का एक प्रॉपर्टी है, इट लुक्स लाइक बॉक्स फंक्शन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसलिए मैंने रिजल्ट यहां बताया. बट इसको डिराइव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे व्हेन वी विल डू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वहां पे आएगा एंड देन वी विल सी फ्रॉम देयर. सो दैट इज द आइडिया अबाउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. एप्लीकेशंस आते रहेंगे, क्वेश्चंस आते रहेंगे, विल कीप ऑन सॉल्विंग. फॉर नाउ दैट्स इट. थैंक यू.